नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों का समापन हुआ है। एक संक्षिप्त समरी मैं समझता हूँ आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बार पेरिस में जो समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था वो 33वें समर गेम थे। जी हाँ, द ओलंपिक विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, दैट वाज 33 ओलंपिक. The Olympic were inaugurated on 26 July by the President Emmanuel Macron, and the closing ceremony was on 11th August. What was the budget? There are a little controversy. Some places I find $13.8 billion, and somewhere they generated about $11.1 billion. But roughly I can say $9 billion. Now, how many countries participated in 33 Olympics in Paris? Total 204 nations participate in 33 Olympic held in Paris. If we see the number of medals, how many medals were received by the total countries who participated in the Olympic? I did say there were 204 nations who participated. Out of 204 nations, 62 nations received at least one gold medal. Out of 204 nations, 62 nations received at least one gold medal, might be USA with 40 gold medals. But out of 204 nations, how many received the medal? Might be bronze medal, silver medal, or gold medal. Total 84 nations received the medals in this Olympic game. How many players, athletes participated? The number is 10,714. What was the ticket? That is also a very important source of income for any Olympic game. The opening ceremony ticket, which I could find the data, that is between $2237 to $2951. Means depending how earlier you purchase the ticket, might be $2237, and if you purchase at the last moment, will be $2951. It is not possible to present the entire table of the medals with countries, but the top 6 or 7 countries is certainly duty to present in front of my friends. First number, obviously, USA. In this Olympic, USA received 40 gold medal and total 126 medal. Once again, I will repeat. In this Olympic, USA received 40 gold medal and including gold, silver, bronze, total 126 medal. China received 40 gold medal, total 91 medal. Japan received 20 gold medal, 45 total medal. Australia received 18 gold medal, 53 total medal. Host country, France, received 16 gold medal with total 64 medals. Britain received 14 gold medals with total 65 medals. Come to my proud of India, मेरा भारत महान. मैं सभी 6 पुरस्कार, ओलंपिक पुरस्कार, मेडल प्राप्त करताओं को नमन करता हूं.
हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन करता हूं। लेकिन यदि मेडल्स की संख्या देखी जाए, गोल्ड नील, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5, या मैं ये कह दूं कि इस ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल एक भी प्राप्त नहीं किया, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इस बार के इतिहास में ऐसा भी हुआ है, कई देशों ने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगा। बोत्सवाना, जी हां, उसने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ग्वाटेमाला, उसने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सेंट लूसिया, उसने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एल्बानिया ने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। डोमिनिका ने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और पाकिस्तान ने भी पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अंतोगत्वा 11 अगस्त को इन ओलंपिक खेलों का समापन हो गया। 33वें ओलंपिक खेल, जिनका उद्घाटन 26 जुलाई को पेरिस में हुआ था, उनका समापन 11 अगस्त को हो गया। फिर एक आशा है, विंटर ओलंपिक और फिर समर ओलंपिक। मेडल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पहले नंबर पे यूएसए हैं, जिसने 40 गोल्ड मेडल और टोटल 126 मेडल लिए हैं। चाइना भी इज नॉट मच बिहाइंड, गोल्ड मेडल 40, टोटल 91 मेडल। इंडिया गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5। It is the time to introspect ourselves. How we can improve the standard of Olympics, yes. How we can prepare our athletes, our players, who can bring much more gold medal. Certainly, I bow to the medal winners. मैंने पहले ही कहा है, हाँ, सभी 6 योद्धाओं के नाम लेना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और हमारी हॉकी की पूरी टीम। नतमस्तक हूं मैं इन सभी, चाहे वो मनु भाकर हों या बाकी सारे प्लेयर हों, हॉकी के प्लेयर्स हों, सबको नमन करता हूं। लेकिन ये संतोष का विषय नहीं है। 145 करोड़ की जनता में मात्र 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल और यूएसए 40 गोल्ड मेडल, 126 टोटल मेडल, कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन या हीनता का एहसास तो करवाता है। अंत में यह भी मैं कह दूं कि हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं। ओलंपिक का इतिहास बहुत पुराना है और पेरिस में ही एक शिक्षाविद के विचार से ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था। यह बात मैं कर रहा हूं 19वीं सदी के लगभग उत्तरार्ध की। ओलंपिक खेल नए नहीं हैं। समय समय पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। मैंने आपसे कहा, अभी एग्जैक्ट डेटा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कहीं मैं 11.1 बिलियन पढ़ता हूं, कहीं 10.8, अप्रॉक्सीमेट मैं $9 बिलियन कह सकता हूं। यदि मुझसे पूछा जाए क्या यही सबसे एक्सपेंसिव ओलंपिक हैं या इससे पहले भी कोई एक्सपेंसिव ओलंपिक हुए हैं, जी हां, ये सबसे एक्सपेंसिव नहीं है। अभी तक के जो मोस्ट एक्सपेंसिव ओलंपिक गेम हैं, जी हां, वो रशिया में आयोजित 2014 में विंटर ओलंपिक थे, जिसमें $25 बिलियन का खर्चा आया था। अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव ओलंपिक गेम, सबसे महंगे ओलंपिक गेम 2014 विंटर ओलंपिक है, जहां $25 बिलियन का खर्च आया था। जब भी ओलंपिक होंगे, खर्चा होगा। हर देश को, विश्व को खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए और तभी खेलों की उत्कृष्टता सामने आएगी जब उनको समुचित सुविधाएं मिलेंगी। भारत में चिंता का विषय है, लेकिन जो कुछ इस बार फ्रांस के ओलंपिक गेम्स के आयोजन में हुआ है, उसकी एक झलक भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारतीय खिलाड़ियों को पहले एसी उपलब्ध नहीं हो पाया था। जी हां, जो उनका खेल विलेज था, जहां भारतीय खिलाड़ी रह रहे थे, एयर कंडीशन नहीं था। शायद बाद में एयर कंडीशन अवेलेबल करवाया गया था। वहां प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर सुविधा नहीं थी कि वो अपने रेजिडेंस से, जहां उनका प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहां तक आ सके। यह भी मैंने अपने
इंडिया के चैनल पे सुना था, कुछ हमारे प्लेयर जब डिनर के लिए वहां गए थे, डिनर समाप्त हो चुका था। ऐसी व्यवस्था की आशा ओलंपिक में नहीं की जा सकती। एक मैं कटु सत्य और बता रहा हूं, आजकल विश्व स्तर पर ही ओलंपिक खेल एक पैसा कमाने का साधन बन गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, जो ओलंपिक 33rd ओलंपिक पेरिस में जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, उसके टिकट की जो कीमत थी वो 2237 से $2951 थी। आप अनुमान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई नेशन, और फ्रांस कोई नया नहीं है, फ्रांस ने पहले 2 समर 2 विंटर आयोजित किए हैं, यह फ्रांस द्वारा आयोजित होने वाला 3रा समर ओलंपिक था। इस प्रकार की पैसा कमाने की प्रवृत्ति, पैसा सेव करने की प्रवृत्ति, जिसमें किसी भी देश के खिलाड़ियों को असुविधा का सामना करना पड़े, मैं समझता हूं इस विश्व के खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। आशा करता हूं आगे जब भी ओलंपिक होंगे, भारत 145 करोड़ वाला जो देश है, वो ओलंपिक कमेटी को ये सजेस्ट करेगा विश्व के किसी भी खिलाड़ी को ड्यूरिंग ओलंपिक किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, और मेरा 145 करोड़ वाला देश गोल्ड मेडल या यूएसए के, चाइना के, जापान के, ब्रिटेन के कहीं नजदीक पहुंचने की कोशिश करे। जो इस बार हुआ, मैं सलाम करता हूं पाकिस्तान के उस जाबाज को भी जिसने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल दिलवाया। मैं उससे ज्यादा सलाम करूंगा नीरज चोपड़ा को, वो गोल्ड प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया। भारत 145 करोड़ वाला ओलंपिक खेलों में आगे से पदकों की संख्या में सोने और चांदी की तरह चमके, मेडल लेकर, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, ऐसी मेरी सरकार से प्रार्थना है, ऐसी मेरी इस देश के सभी खिलाड़ियों से प्रार्थना है। नमस्कार।